Hello dear students, greetings of the day. Myself Mrs. Prabla and I am your history teacher. Today I am going to start a new chapter of class 9th, chapter number 6, The Age of Guptas. In the previous session we have completed chapter number 5, the Sangam Age. Sangam Age is just related to the south part of India, and before that in chapter number 4 we have discussed about the Mauryan period. Okay, so I am going to start this chapter by giving the introduction of the post-Mauryan period. Post-Mauryan period मतलब Mauryan period के जो बाद का time रहा है. What kind of period was that? So within the 50, so first of all you should know the main important rulers of the Mauryan Empire, which we have discussed in the chapter number 4. So the main rulers of the Mauryan Empire were number 1 Chandragupta Maurya, who was the founder of the Mauryan dynasty. And next was the Bindusara, the son of Chandragupta Maurya, and the Ashoka the Great, he was the son of Bindusara. Okay, that were the main important rulers of the Mauryan dynasty. And after the death of Ashoka, within the 50 years after the death of Ashoka, in 232 BC, the great Mauryan Empire broke into pieces. In 200 up to the 232 BC, जो great Mauryan Empire था, that was broke into pieces. One by one, the provinces of the Mauryan Empire became independent. तो Mauryan Empire के जितने भी provinces थे, जितने भी areas थे, जितनी भी उसकी territories थी, one by one वो क्या होनी शुरू होगी, independent. उन्होंने अपने आप को independent घोषित करना शुरू कर दिया. जितने भी provinces के governors थे, they became independent. And central authority, there was a lack of central authority. And in 185 BC, the last Mauryan king. तो 185 BC में जो लास्ट मौर्यन किंग थे, दैट वाज बृहद्रथ. द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ, ही वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र. तो बृहद्रथ को किसने मार दिया? किल्ड बाय पुष्यमित्र. पुष्यमित्र शुंगा. तो पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ का मर्डर हो जाता है. द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ वाज ओवरथ्रोन बाय द पुष्यमित्र शुंगा एंड ही एस्टैब्लिश्ड द शुंगा डायनेस्टी. तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत होती है? विच डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्ट इन द आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी? दैट वाज द शुंगा डायनेस्टी. ओके, सो पुष्यमित्र शुंगा जो है शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं. एंड द डायनेस्टी रूल्ड लार्ज एरियाज अप टू 73 BC. तो 73 BC तक जो है शुंगा डायनेस्टी का जो है रूलिंग टाइम रहता है. एंड जो शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, द लास्ट रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी, दैट वाज देवाभूमि. लास्ट रूलर जो था शुंगा डायनेस्टी का, ही वाज देवाभूमि. जो देवाभूमि था, देवाभूमि का भी मर्डर कर दिया जाता है. देवाभूमि वाज किल्ड बाय वासुदेवा. तो देवाभूमि को कौन मार देता है, कौन मर्डर करता है? इसका वासुदेवा. ठीक है, तो इस टाइप से जो है शुंगा डायनेस्टी का भी एंड हो जाता है इंडिया से. सो बोथ कलिंगा एंड सातवाहना, दैट वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर. कलिंगा भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था. कलिंगा का तो अशोका ने जीता था, ठीक है ना. तो कलिंगा एंड सातवाहना, दैट वाज द पार्ट अर्लियर द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर दैट broke away from the Mauryan Empire, and thus both northern and the south side of the India, north part and the south part of India, there was no single ruler who can rule the India, who can command the India, who can care the India, है ना. And in the absence of central authority, तो central authority की कमी रही, central authority की absence थी इंडिया में. We can say that there is a vacuum created in the India. एक टाइप का वैक्यूम क्रिएट हो गया था इंडिया में. किस टाइप का वैक्यूम क्रिएट हो गया था कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो नहीं थी. Political kind of vacuum that was created in India due to the absence of central authority in India, and there was none to hold the whole India, none to control the whole India. तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पोस्ट मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड के बाद क्या होता है और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होती है. तो
today we have to discuss about the age of Guptas. Okay, so let's start. The imperial age of Guptas. The first topic is the imperial age of Guptas. गुप्तास का जो पीरियड है वो कैसे शुरू होता है और इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 320 AD टू 540 AD. So this was the whole period 320 AD to 540 AD तक जो है गुप्ता रूलर्स ने रूल किया है, ऑलमोस्ट 222 years, approximately 222 years Gupta rulers ruled over India, and in the year of 320 AD once again a powerful empire rose in India, powerful empire that rose in India, that was known as the Gupta Empire, and which was lasted up to the 540 AD. It was started here in 320 AD and it was lasted up to the 540 AD. ठीक है, and the time of Gupta Empire, referred as the Golden Age. Golden Age as a point of view, in the point of view science, mathematics, astronomy, religion, ठीक है. तो इस टाइप से जो था गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है, बिकॉज दीज ऑल द सब्जेक्ट्स, दीज ऑल द फील्ड्स, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, philosophy, religion, all these parts developed very well under the Gupta rulers. तो गुप्ता रूलर्स के टाइम में सभी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा ग्रेट डेवलपमेंट हुई. दिस इज द रीजन वाई गुप्ता डेंसिटी, द गुप्ता रूलर, द गुप्ता एम्पायर वॉज नोन एज द गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड ऑफ द इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट मेन गुप्ता रूलर, दैट इज चंद्रगुप्ता फर्स्ट. चंद्रगुप्ता फर्स्ट. बच्चे यहाँ पे चंद्रगुप्ता मौर्य और चंद्रगुप्ता फर्स्ट में फर्क है, दोनों अलग अलग रूलर्स हैं, दोनों को एक मत समझना. चंद्रगुप्ता मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, ओके, बट चंद्रगुप्ता फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. तो दोनों में फर्क है, दोनों को एक ही नहीं समझना है कि आप चंद्रगुप्ता मौर्य की जगह पर चंद्रगुप्ता फर्स्ट आंसर लिख दो और चंद्रगुप्ता फर्स्ट की जगह पर आप चंद्रगुप्ता मौर्य लिख दो. ठीक है, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, बोथ आर द डिफरेंट रूलर्स. सो चंद्रगुप्ता फर्स्ट का जो रूलिंग पीरियड है दैट इज 320 to 335. 320 to 335. So this was the ruling period of Chandragupta first, and he was the founder and the first ruler of the Gupta dynasty. Founder ruler था ये, founder of Gupta dynasty. Chandragupta first was the founder of the Gupta dynasty, and when he extended the throne, the empire just confined up to Magda. जब वो राजगद्दी पर बैठा तो जो अंपायर था वो कहाँ तक सीमित हो गया था, दैट वाज जस्ट कन्फाइंड अप टू द मगधा. तो सिर्फ मगधा का मेन जो पार्ट था वो हम इसकी टेरिटरीज में आता था. दैट वाज कन्फाइंड मतलब होता है बच्चा सीमित हो जाना. तो सीमित कहाँ तक था, मगधा तक ही सीमित था. बट ही एक्सटेंडेड द अंपायर, इसने अंपायर को एक्सटेंड किया चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने. हाउ ही एक्सटेंडेड द अंपायर, he made the matrimonial alliances with the rulers. Matrimonial alliances क्या होता है? What do you understand by the matrimonial alliances? Matrimonial alliances मतलब he made the marriage relations with the other kings. Marriage relations मतलब दूसरे राजाओं की जो बेटियां थी उनके साथ उसने मैरिज रिलेशंस बनाए. एंड इस टाइप से जो पावरफुल रूलर्स थे जिनके साथ जिनके साथ उसने उनकी बेटियों के साथ उसने शादी की थी, तो उन लोगों ने उसकी हेल्प की अपने किंगडम को एक्सपेंड करने में. तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस, ही मेड द मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड ही आल्सो बाय थ्रू वेरियस कंक्वेस्ट, बहुत सारी उसने
वॉर्स भी, लड़ाइयाँ भी लड़ी और बहुत सारी जीतें भी प्राप्त की। तो दैट वाज हिज पॉलिसी। Means how he extended the empire? He extended the empire through the matrimonial alliances and through the conquest. ठीक है? And he married the Lichavi princess named Kumara Devi. That was the main मतलब matrimonial alliance. किसके साथ उसने मैरिज की थी? Lichavi princess थी and her name was Kumara Devi. He married Kumara Devi. She was the Lichavi princess and with the help of Lichavis की हेल्प के साथ चंद्रगुप्ता वन एबल टू एक्सटेंड हिज एम्पायर। तो चंद्रगुप्ता ने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया, एक्सपैंड किया बाय कंकरिंग द नेबरिंग स्टेट्स। नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन सी थी उसकी? अवध हो गया, बिहार हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, तिरहत हो गया। तो इन सब नेबरिंग स्टेट्स को उसने जीता, अपने कंट्रोल में लिया विद द हेल्प ऑफ लिचाविस की हेल्प से उसने अपने एम्पायर को प्रॉपरली एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर दिस कंक्वेस्ट ही गेव हिम द टाइटल्स, अपने आपको टाइटल्स दिए। ऑलवेज द किंग्स यूज्ड टू गिव टाइटल्स टू देमसेल्व्स टू शो देयर पावर, टू शो देयर अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए दे यूज्ड टू गिव देमसेल्व्स द टाइटल्स। दे अज्यूम द टाइटल्स लाइक महाराजा धीराज। तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट गेव हिमसेल्फ अ टाइटल महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मतलब किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, है ना। तो इस टाइप से ही गेव हिमसेल्फ अ टाइटल महाराजा धीराज एंड ही रूल्ड फॉर नियर अबाउट 15 ईयर्स। तो 320 से इसकी रूलिंग पीरियड स्टार्ट होता है 335 तक। तो ऑलमोस्ट कितने ईयर्स हो गए? 15 ईयर्स तक उसने जो है रूल किया है चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने। एंड आफ्टर हिज डेथ हिज सन समुद्रगुप्ता एक्सटेंडेड द थ्रोन। तो चंद्रगुप्ता की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता, हु सक्सीडेड द थ्रोन? चंद्रगुप्ता फर्स्ट का जो सन था, द सन ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट एंड हिज नेम वाज समुद्रगुप्ता फर्स्ट। समुद्रगुप्ता फर्स्ट, he was the son of, किसका बेटा था? चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता फर्स्ट का बेटा था समुद्रगुप्ता एंड he extended the throne and his ruling period was 335 to 380. 335 से लेकर 380 तक नियर अबाउट कितने ईयर्स यहाँ पे हो गए बच्चे? नियर अबाउट 45 ईयर्स। तो ही कंटिन्यूसली रूल्ड हियर India for near approximately 45 years, and Samudragupta, the ruler of Gupta Empire, and his ruling period was 335 to 380 AD, and he was the greatest military general. He was a very powerful king, greatest military general, and he was also known as the Napoleon of India. Napoleon of India. चंद्रगुप्ता समुद्रगुप्ता फर्स्ट को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज ही वॉज अ वेरी ग्रेटेस्ट मिलिट्री जीनियस इन द इंडियन हिस्ट्री एंड द मेन सोर्स ऑफ समुद्रगुप्ता's हिस्ट्री वॉज। तो मेन सोर्स ऑफ समुद्रगुप्ता के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्ता जो थे बहुत ग्रेटेस्ट जर्नल थे, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया उनको। तो उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, तो सोर्सेस क्या क्या रहे हैं जिससे हमें समुद्रगुप्ता के बारे में पता चलता है। तो मेन सोर्स क्या है? इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन द स्टोन पिलर। इंस्क्रिप्शन दैट वाज engraved on the stone pillar. stone का बच्चे पिलर है, that was in इलाहाबाद में स्टोन का पिलर है, उसके ऊपर जो है इंस्क्रिप्शन इनग्रेव करके लिखी हुई है, खुदाई करके लिखी हुई है इंस्क्रिप्शंस जो हैं। वहां से जो है हमें समुद्रगुप्ता के बारे में जो बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारी जो है वो हमें मिलती है। इन दिस इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्ता डिटेल्स हिज कंक्वेस्ट, हिज अचीवमेंट्स। तो इस जो इंस्क्रिप्शन में उसकी जितनी भी अचीवमेंट्स रही हैं, समुद्रगुप्ता की अचीवमेंट्स,
उसके कंकेस, उसके संघर्ष, उसकी जीतें, वो सब चीजों की जानकारी हमें इस इंस्क्रिप्शन से मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंडिकेट्स द नेमिंग ऑफ द डिफरेंट किंग्स एंड पीपल हु पॉपुलेटेड इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 4th सेंचुरी। तो गुप्ता पीरियड जो है 4th सेंचुरी का टाइम है। ओके, सो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी कितने रूलर्स इंडिया में आए, कौन कौन से रूलर्स ने यहाँ पे आके रूल किया, तो उन सब की जो डिटेल है वो हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन है, स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे मिलती है, जो किसने लगवाया था, समुद्रगुप्ता के टाइम में हरिसेना जो था, हरिसेना वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ समुद्रगुप्ता। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज composed by Harisena. Harisena was the court poet of Samudragupta and this inscription gave a valuable information about the Samudragupta. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी लाइन्स लिखी हुई हैं। इट वॉज ऑल दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंग्रेव्ड इन अ लाइन्स एंड हर एक लाइन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइन्स की बात करें बेटे, तो जो 19 एंड 20 है, लाइन 19 एंड 20 जो है, दैट इज डिस्क्राइब्स द डेक्कन कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्ता। डेक्कन कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्ता। डेक्कन कैंपेन कहाँ से कहाँ तक रहा, डेक्कन कैंपेन कैसा था समुद्रगुप्ता का, दक्षिणा पथ भी इसको बोलते हैं। So line 19 and 20 describe the Deccan campaign of Samudragupta. In the same way, तो यहाँ पे बच्चे जो Deccan campaign है, यहाँ पे टोटल जो दक्षिण के, जो Deccan के 12 किंग्स थे, उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, and line 21 and 23 mention the names of 9 kings of लाइन जो है 21 एंड 23, तो मेन जो 9 किंग्स थे आर्यभट्ट, 9 किंग्स ऑफ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के जो 9 किंग्स थे उसके बारे में मेंशन है लाइन 21 एंड 23। मेंशन द नेम्स ऑफ द 9 किंग्स ऑफ आर्यभट्ट दैट वाज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता ने जिन 9 किंग्स को हराया था, ठीक है, आर्यभट्ट के किन 9 राजाओं को हराया था, उनकी डिटेल है। लाइन 22 स्पेशली डिस्क्राइब्स अबाउट द 5 नेबरिंग स्टेट्स। तो जो लाइन 22 है, लाइन 22 जो है उसके बीच की जो 21 से 23 वैसे 9 किंग्स ऑफ आर्यभट्ट मेंशन है, लेकिन बीच की जो 22nd लाइन है दैट डिस्क्राइब्स द 5 नेबरिंग स्टेट्स। तो उसकी 5 नेबरिंग स्टेट्स कौन सी रही हैं, इंक्लूडिंग असम आ गया, कोस्टल बंगाल आ गया, नेपाल एंड नंबर ऑफ गना संघस। तो इस टाइप से जो जितनी भी लाइन्स हैं वो कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रही हैं। ओके, एंड लाइन 23 मेंशन द नेम ऑफ द किंग्स। जो 24th लाइन है, 24th लाइन जो है वो किस चीज को मेंशन करती है, नेम्स ऑफ द फॉरेन किंग्स, नेम ऑफ फॉरेन किंग्स। फॉरेन किंग्स मतलब जो विदेशी राजा थे, दैट पेड होमेज एंड एलिजियंस। एलिजियंस मतलब एक अपना फेथ, एक अपनी लॉयल्टी जो शो की उन्होंने किसके प्रति, समुद्रगुप्ता के प्रति, उनके नेम्स मेंशन है, उन फॉरेन किंग्स के नेम मेंशन है लाइन नंबर 24 में। दैट पेड होमेज एंड एलिजियंस। एलिजियंस मीन्स लॉयल्टी टू द समुद्रगुप्ता। तो इस टाइप से जो है ये पूरा का पूरा जो है मतलब मेन जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट द समुद्रगुप्ता दैट वाज द इलाहाबाद रॉक पिलर, जो स्टोन का पिलर है उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है, स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन दैट वाज सेट अप इन इलाहाबाद बाय द कोर्ट पोएट हरिसेना। दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री अबाउट द समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता की हिस्ट्री के बारे में मेन सोर्स है वो। ठीक है, नेक्स्ट किंग वाज चंद्रगुप्ता सेकंड। Next main ruler of the Gupta dynasty was Chandragupta II.
Chandragupta second was the son of Samudragupta. चंद्रगुप्ता सेकंड, इसको बच्चे विक्रमादित्य भी बोला जाता है। Chandragupta second was also known as Vikramaditya and his ruling period was 375 to 430. तो उसका जो रूलिंग पीरियड रहा है दैट वाज 375 टू 413, नियर अबाउट कितनी इयर्स हो गए, 25 प्लस 13 तो 35 38 इयर्स, 30 इयर्स का रूलिंग पीरियड रहा है चंद्रगुप्ता सेकंड, ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। एंड चंद्रगुप्ता सेकंड वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता, किसके बेटे थे वो, समुद्रगुप्ता के बेटे थे। एंड ही वाज द सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता फर्स्ट, तो समुद्रगुप्ता फर्स्ट के वो सक्सेसर भी रहे हैं और समुद्रगुप्ता के वो बेटे थे चंद्रगुप्ता सेकंड। ओके, एंड ही वाज अ ग्रेट कंकरर एंड पावरफुल रूलर। तो विक्रमादित्य वाज वन ऑफ द ग्रेट कंकरर एंड पावरफुल रूलर एंड ड्यूरिंग हिज टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विक्रमादित्य द अंपायर वाज एट इट्स पीक, एट इट्स ग्लोरी, है ना। तो विक्रमादित्य के टाइम में जो रूल था, जो अंपायर था, दैट वाज एट द ग्रेटेस्ट हाइट, एक ऊंचाइयों पर था। एंड ही डिफीटेड द शाका किंग्स ऑफ मालवा, गुजरात एंड कोंकण। तो उसने किसको हराया, जो शाका रूलर्स थे मालवा के, शाका रूलर्स ऑफ मालवा, मालवा के शाका रूलर्स थे मालवा, गुजरात एंड कोंकण। शाका रूलर्स थे, he defeated Shaka rulers of Malwa, Konkan and Gujarat and thus he extended the empire, Gupta empire up to the Arabian Sea। तो इस टाइप से जो था विक्रमादित्य ने अपना जो गुप्ता अंपायर था वो अरेबियन सी तक एक्सटेंड कर लिया था, अरेबियन सी तक उसकी जो बाउंड्रीज थी वो बढ़ गई थी। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ सकारी, तो उसने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया, सकारी। साकारी वर्ड के derived from the word साका, साका वर्ड से ही साकारी वर्ड लिया गया है। साकारी मीन्स, सकारी का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द साकास, क्योंकि why he gave the title himself Sakari, he gave the title himself Sakari because he defeated the Saka rulers. This is the reason he gave the title Sakari to himself, because Sakari means a destroyer of Sakas and this was his greatest achievement। तो ये उसकी विक्रमादित्य के टाइम की एक बहुत महान अचीवमेंट रही है। एंड ही ऑल्सो मेड द उज्जैन हिज कैपिटल। एंड जो विक्रमादित्य थे उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया, उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया। एंड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, देयर वाज द ग्रेट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड और विक्रमादित्य। एंड हिज मेन that one traveler, that foreign traveler who came during the time of Chandragupta second was Fahizan। फाहिजान के बारे में डिस्कस करेंगे। फाहिजान, बच्चे इसकी प्रोनाउंसिएशन है फाहिजान। फाहिजान जो था ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर, फाहिजान जो थे चाइनीज ट्रैवलर थे। चाइनीज ट्रैवलर थे एंड ही केम टू इंडिया। ही केम टू इंडिया इन ऑर्डर टू विजिट द holy places associated with the life of Buddha. Why he came to India? Actually, the main motto of his visit was he wanted to visit the holy places related to Buddhism. बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी होली प्लेसेस थे वो उनको देखना चाहता था, वहाँ पे वो जाना चाहते थे। एंड टू कलेक्ट द सेक्रेड बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर को कलेक्ट करना उसका मेन मकसद था चाइनीज ट्रैवलर फाहिजान का। एंड ही लेफ्ट हिज कंट्री इन 399 AD एंड रीच्ड इंडिया इन 405। 399 AD में क्या किया, ही लेफ्ट हिज कंट्री and 405 AD he reached
इंडिया, मतलब इंडिया में वो कब आते हैं 405 AD। ओके, हु फाइजान, एंड ही स्टेड हियर इन इंडिया फॉर द 6 years। तो यहाँ पे 405 में वो आते हैं, तो ही स्टेड 6 years he stayed in India। तो 6 साल का जो टाइम है वो इंडिया में वो स्पेंड करते हैं 405 to 411, 6 years। ही स्पेंड 3 years एट पाटलिपुत्रा, 3 साल जो है वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं, इन पाटलिपुत्रा। एंड पाटलिपुत्रा वॉज द कैपिटल ऑफ द गुप्ता एम्पायर during this time, and he spent 3 years at Patliputra, the capital of the Gupta Empire, during his 6 years, and stayed 3 years in the Gupta Empire। ठीक है, 3 years जो है वो पाटलिपुत्रा में स्पेंड करते हैं। तो टोटल जो है 6 years he spent in India, out of that 6 years he spent 3 years in the Patliputra, that was the capital city of the Gupta Empire, and Faizan has given an account of his travel। तो जब वो इंडिया में आए, इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया, तो इंडिया में जो ट्रैवल किया उसके बाद उसने जो इंडिया का एक्सपीरियंस जो रहा, जो उस टाइम के रूलिंग टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो उसने अपनी बुक में मेंशन किया है। उसकी बुक थी, उसका टेक्स्ट था फोकोकी। That was the account written by Faizan, and most of the things he written about the Buddhism के बारे में ज़्यादा लिखा है। Mostly he written about the Buddhism, but in his accounts we get a light, we get a knowledge about the political, economic, social and cultural conditions of the Gupta time। क्लियर है बच्चे? क्योंकि फाहिजान का मेन मकसद क्या था इंडिया में आने का, वो बुद्धिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहता था, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को कलेक्ट करना चाहता था। एंड उसने 3 साल जो थे अपने वो गुप्ता एम्पायर की जो कैपिटल सिटी थी दैट वाज पाटलिपुत्रा, वहाँ पे स्पेंड किए। एंड जो उसकी बुक है, जो उसका टेक्स्ट है फोकोकी, उसने जो उस टेक्स्ट से हमें उस टाइम के जो एम्पायर था गुप्ता एम्पायर के बारे में भी जानकारी मिलती है। हालांकि उसने जो है बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा मेंशन किया है, बट ही आल्सो मेंशन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर आल्सो। क्लियर हो गया बच्चे? सो ये थे 3 मेन रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। फर्स्ट थे चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ही वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता वाज द son of Chandragupta first, the second main ruler of the Gupta dynasty, and the third was the Vikramaditya। विक्रमादित्य को हम चंद्रगुप्ता सेकंड भी बोलते हैं। तो चंद्रगुप्ता जो सेकंड थे, जब विक्रमादित्य थे, he was the third and main important ruler of the Gupta dynasty। Now we will discuss the next topic, that is the Gupta Empire lasted up to 540 AD। Or we can say the decline of the Gupta Empire। तो गुप्ता रूलिंग जो है 540 AD तक ही रही है। तो 540 AD के नियर अबाउट जाकर जो है गुप्ता एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट? व्हाट वाज द रीजंस behind the disintegration of the Gupta Empire? So there were various reasons। Number 1, all the successors of Skandagupta। बच्चे हमने अभी लास्ट जो मैंने रूलर आपसे एक्सप्लेन किया था दैट वाज चंद्रगुप्ता सेकंड, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। एंड विक्रमादित्य के बाद जो था रूलर कौन बनता है, दैट वाज कुमारगुप्ता फर्स्ट। कुमारगुप्ता के बाद जो रूलिंग में आता है, रूलर बनता है, दैट वाज स्कंदगुप्ता। तो जो मेन स्कंदगुप्ता तक जो थे ऑलमोस्ट ठीक था, बट आफ्टर द स्कंदगुप्ता ऑल द सक्सेसर्स ऑफ स्कंदगुप्ता वर वीक एंड इनएफिशिएंट। तो जितने भी सक्सेसर थे स्कंदगुप्ता के, दे ऑल वर वीक एंड इनएफिशिएंट, दे कुड नॉट कंट्रोल द एम्पायर प्रॉपर्ली, दे वर कॉट इन द वॉर्स ऑफ सक्सेशन। तो स्कंदगुप्ता के बाद जो रूलर्स रहे हैं उनमें किस टाइप की लड़ाई चलती रहती थी? द वॉर ऑफ सक्सेशन।
राजगद्दी को लेकर आपस में उनमें जो झगड़े थे वो हमेशा कंटिन्यू रहते थे. सो दिस वाज द मेन रीजन. फर्स्ट रीजन, सक्सेसर्स ऑफ नंबर 1, सक्सेसर्स ऑफ स्कंदगुप्ता were weak and inefficient. So the another reason was Buddhist teachings of ahimsa. The Buddhist teachings. बुद्धिस्ट की क्या टीचिंग्स थी? जैनिज्म बुद्धिज्म चैप्टर प्रॉपर्ली डिस्कस किया था हमने, पूरा फुल चैप्टर था और उसकी टीचिंग्स भी पढ़ी थी. टीचिंग्स में मेन टीचिंग थी बुद्धिज्म की कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, है ना, किसी को हर्ट नहीं करना, डोंट हर्ट एनीवन. सो बुद्धिस्ट टीचिंग्स ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस और नॉन इंजरी टू एनीवन वीकेंड द मार्शियल स्पिरिट ऑफ द सोल्जर्स. तो जो सोल्जर्स, जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने लड़ाई झगड़े छोड़ दिए थे. उनकी जो मार्शियल स्पिरिट थी, मार्शियल स्पिरिट मतलब जो उनकी लड़ाई करने की एक मतलब एक योग्यता थी, जो एक लड़ाई करने की उनकी भावना थी, वो कि कहीं ना कहीं पे वो खत्म होनी शुरू हो गई थी. सो देयर मार्शियल स्पिरिट वाज, द सोल्जर्स मार्शियल स्पिरिट वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द बुद्धिस्ट टीचिंग्स. क्लियर है? दिस वाज द अनदर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता रूलर्स, गुप्ता डायनेस्टी. नेक्स्ट है बच्चे, द वास्टनेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर. वास्टनेस ऑफ गुप्ता एम्पायर. गुप्ता एम्पायर बहुत वास्ट था. तो गुप्ता एम्पायर की वास्टनेस, द वास्टनेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर मेड द लेटर किंग्स, जो लेटर गुप्ता रूलर्स रहे हैं, ठीक है, इट इज हार्ड फॉर द किंग्स टू कंट्रोल, स्पेशली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वॉज वेरी वीक. दैट वॉज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और गुप्ता एम्पायर वॉज वेरी वास्ट एंड इट कुड नॉट बी कंट्रोल बाय द लेटर गुप्ता रूलर्स. तो लेटर गुप्ता रूलर्स जो भी रहे हैं, उनको वो लोग जो थे पूरे के पूरे एम्पायर को प्रॉपरली कवर नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए. नेक्स्ट इज द प्रोविंशियल गवर्नर्स टुक एडवांटेजेस. provincial governors took advantages. तो इस वीकनेस का फायदा किसने उठाया? जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे. जो गवर्नर्स थे, जब उनको पता चला कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी में अभी कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं रहा, सो दे टुक द एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द सेंट्रल रूल एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट. और अपने आप को क्या कर दिया? अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया उन लोगों ने. एंड इन दिस वे द होल एम्पायर, द वास्ट गुप्ता एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड. तो इस टाइप से ये कुछ रीजंस रहे हैं. दीज वर सम ऑफ द रीजंस व्हाई द वास्ट गुप्ता एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, why the Gupta Empire declined. Clear है? तो this is all about today's video session. In the next video session, I will discuss with you the cultural development in the Gupta period and art and architecture during the Gupta period. That we will discuss in the next video session. So watch the video up to the end very carefully and try to understand the concept. Thanks and have a nice day.